can start in a few seconds. Okay. So, guys, Plan to Win has a vision to build a community that creates a future of choice, where success is followed by ease and grace through creativity, commitment, and integrity. So, guys, with this, I welcome our favorite speaker, Puneet Bhatnagar, to address you all. Puneet, over to you. Okay. Thanks, Darshana. Thanks so much. My pleasure. My pleasure. And it's my pleasure that every time you call me on some special occasion. Last time we were one day before the storytelling session, and today we are at Gudi Padwa. So I would Absolutely. uh, my good wishes for Gudi Padwa to all of you, all my friends here. Some of you were there in the last session also. Uh, that gives me some confidence that I am with friends, and many of you are here first time. Uh, so I would recap a little. Now 5 minutes are already gone. 5 minutes will be taken care of in the end by Darshana. So I think we have some 48 odd minutes, and so let us make the best of it. So what I will do, I'll recap in short, in very, very short, in bullet points. And then we will open the session for any questions, any curiosities. Okay. So last time we spoke about how storytelling is very important. And it's important, so important that there is a World Storytelling Day for it. That's how we started. I told this, I told the community about how storytelling was always there, because even our ancestors who made those cave paintings, they were actually telling us their stories. I also touched upon what is a story, because everybody today talks about stories, but when it comes to real understanding of a story, uh, there is very little understanding on that. And so I told you guys my point of view, which is a story is a representation of outer world, outer events to ourselves, to human beings. Because we human beings relate to the outer world through stories in our mind. All our memories are basically stories. The way we relate with other people is through stories. So these were some basic points. Then we also spoke about stories being fictional, because because what happens? Whatever happens outside, the world is so big, and we can't capture everything. So what we do is we capture some part of it for our own understanding, and uh, that's fictional because that is your representation of the outer world. And in the same situation, 10 people will have 10 different stories. So we also touched upon how people might be creating different stories about Plan to Win, different stories about their own life. So these were the basic things, but the most important thing that I said in the last session was there are two stories which are the most powerful stories in our life, which impact all decisions of our life. Story number one was that there is a world outside, which is mighty world, and I'm powerless against this world. It's such a mighty world, and I'm just a drop in the ocean. And the story number two is the world outside is a mighty world, but when I want to do something, it helps me. So that might is available to me. It's not against me, but for me. I think these are the two stories we spoke about last time. And I would
underline it again and again and again, because these stories play so silently in our minds, in our hearts, that we we aren't just aware of it. So these were the basic points. I also said one thing which somebody asked me later on in my LinkedIn box. I told you that life is a never-ending story, and somebody wrote to me saying, "But it always ends. It always ends. We all know that we are not here for eternity." And my friends, that's the power of stories, because even today we talk about Mahatma Gandhi, and we are influenced by him. We talk about Steve Jobs, who isn't here in this world, but his stories, his life experiences, his presentations, his YouTube videos, they all influence us. In the same way, we remember our ancestors, our grandfathers, people who were with us and not with us now. They always, they keep on influencing us, and their story remains with us. And I'm telling you, your story will remain forever, because we are also influencing many people in our lives. Good, bad, ugly, but our story remains. And because stories are representation for the human mind, till the time human beings are here, stories will remain. So I think that is my answer to that friend. And that is most of what I said. I spoke about some stories also, like one very important thing that I said in the beginning was, when everything positive, 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 and very rosy, it doesn't help, because life, it is a representation of life. Please understand. And if representation is not correct, our journey will not be. Another thing I spoke about, how we create stories about people, and I shared a incident where a friend thought that he was not lucky, and then uh, we started an experiment where he said, "I am lucky." Every time something new happened, something good happened, he said, "I am lucky." And I think uh, that kind of narration to ourselves helps in the long run. So these were some basic points. We also spoke with SS. Uh, I hope I'm remembering the name correct. Name correct. Uh, oh, and I forget that I'm talking in English throughout, because most of you might be more comfortable in Hindi. तो मैं शिफ्ट करता हूँ. तो दोस्तों, एसएस के साथ हमने बात की, जो सिंगल मदर हैं, और बातचीत एक बहुत अच्छे मोड़ पर थी, और आप में से और भी बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन वक्त वक्त की कमी के कारण वो स्टोरी वहीं पर रुक गई, ऐसा कहूँगा. खत्म नहीं हो गई, रुक गई. और आज हम फिर आपके साथ हैं. तो आप लोगों में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, वो अपने सवाल पूछ सकते हैं, और हम उन सवालों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे. और बीच में जब मेरे 10 मिनट बच जाए, तब दर्शना आप मुझे रोकिएगा, so that I can add few more pointers to it. उसके बीच में हम सवाल जवाब कर सकते. So guys, anyone has questions? मुझे लगता है पुनीत, we can definitely ask them questions also. मगर आपको जो if there is something that Uttara has a question, okay? तो अगर आप वो जो last के 10 minutes को भी अगर आप बीच में intersperse कर सकते हैं, या Uttara has started the question. No, but let me get a feel. I always start with a feel of the audience, what they want, उनके मन में क्या चल रहा है. Exactly. And yeah. I don't want a situation where पिछली बार की तरह कि लोग चाह रहे थे पूछना, लेकिन पूछ नहीं पाए. हाँ, So correct. Yeah. let us see. Yeah. Let us see. Yes. Yeah.
Uttara, you can unmute yourself, dear. Yeah. Good morning, Puneet. Good morning, Hi, Darshana. good morning. Good morning. Yeah. So, Puneet, this storytelling, does storytelling to ourselves mean that that is going to give us the confidence to face any situation in life? Okay. I'll answer it this way that it depends on the kind of story that you tell yourself. If your story is, I am not confident, whenever I do something, some resistance comes, then definitely we can't face the world. We have to choose our stories very consciously, very consciously. Okay. So storytelling, so again, I'm not calling it storytelling anymore because then there might be a sense that I'm going to tell you how to tell a story. This is more about stories that we tell ourselves. The story is within. So, like Darshana said, I would weave in what I wanted to tell in the end. And so what I'll suggest is observe your stories. Just observe your stories. What stories are running inside you all the time? When you are all alone, what do you talk to yourself? And uh, let me ask, people here, what kind of stories run through you? What are the stories that you often tell yourself? Very honestly, not miracle and abundance and I can do anything in the world. Actually, honestly, what are the stories? What are thoughts that keep running in your mind most of the time? Yes, Uttara. Yeah. Puneet ji, Hmm. yeah, whenever in personal relationships, when there is a conflict, Hmm. um, uh, personal relationships, mean, it can be family also. So Hmm. that time when we have conflicts, Hmm. everyone wants to become a winner. Yeah. Okay. Yeah. Like if I'm having something with my son, I want to win. But then, though I have the capacity, I keep a low profile. Hmm. So that time for few minutes, I feel bad Okay. that Okay. I allow him, and that is not my true self. Hmm. So later on, what should I do? Okay. So, I know how to so, win. Yeah. Mm. nice question, very honest question. And Yeah. if I would be in a hall or in a meeting, I would tell everyone to clap for it. I'm really telling you, very honest question. And so let me tell you two things. Two things. Like I said, our life is a never-ending story. Please understand this. Number one, uh, there are two ways to look at it. One is there is a kind of conflict. We had a little argument. You let him win. I would say, let him win in that moment. Okay. If you look to the story like that, in those 5 minutes, 10 minutes, then okay, you said he win, I lost, whatever. Okay. But if you look to the story on a larger canvas, where you you will have another story where you will say why I lost, why I chose, why I chose to lose, then you will have a different kind of meaning in your mind. Okay, so we choose our stories. Let me put it this way. Number one, I will say there is no losing and winning, especially in the personal relationships. I would ask all of you when we are talking about a story is to read a book by Gary Spence. I am writing his name, Gary Spence.
I don't know exactly the name, but I think it will be Art of Winning. How to win at argument every time, something like this. So you Google it and you'll find. I am telling you, this book, do read. Everyone, I'm telling you, whether you are a storyteller, you are a coach, trainer, you want to work on yourself in whatever manner. And why I am telling you this right now is Gary Spence is known to win all cases in his life. He was an American advocate, criminal advocate, and he won all his cases. Not a single one he lost in criminal cases. And he has written this book, that how he won all those cases. And the whole book is basically about storytelling. That how judges and juries, they relate with a story. They don't relate with facts. He had won a case where somebody had a gun in hand, shot on camera, uh, but he won the case. You know, that book, he wrote a book about it, that also called Smoking Gun. So what I'm saying is, he won because he had an ability to tell relatable stories to the audience. Okay. And Uttara ji, why I am telling this again, मुझे हिंदी में आता है, मैं हिंदी में आता हूँ, मैं ये क्यों सुना रहा हूँ, ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ. गैरी स्पेंस, जो अपने क्रिमिनल लॉयर के रूप में जिंदगी के सब केस जीत गए, उन्होंने उस किताब में लिखा है, जब बात फैमिली की हो तो हार जाना बेहतर है. Thank you. I think that is the insight here, because Thank you. बिकॉज उसका एक रीजन बता रहा हूँ आपको. ये विन एंड लूज सबसे पहले हमारी कहानी में से ये निकालना पड़ेगा. ओके, बिकॉज ही सेड, एंड राइटली ही सेड, हारा हुआ आदमी आपसे प्यार नहीं करता, डरा हुआ आदमी आपसे प्यार नहीं करता, वो डर जाता है, झुक जाता है, लेकिन आपसे प्यार नहीं करता. एंड व्हाट्स इंपॉर्टेंट इन ए फैमिली इज लव मोर देन एनीथिंग. तो आई थिंक इसको इस रूप में लें कि एक तो स्टोरी को बड़ा कीजिए, स्टोरी को बड़ा कीजिए. सोचिए कि एक फिल्म है, फिल्मों में क्या होता है, एक जगह एक बंदा है, चुपचाप रह जाता है, झुक जाता है, और फिल्म के एंड में वो फिर आता है. तो कहते हैं ना, कहानी अभी बाकी है दोस्त, फिर आता है और एक बहुत क्रूशियल मोमेंट पे वो अपना, उसकी वर्थ पता चलती है कैरेक्टर. इन द सेम वे आई थिंक आप जो कर रही हैं एज ए मदर, इट्स पार्ट ऑफ ए बिगर स्टोरी. सो मैं बहुत कुछ अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन क्योंकि छोटी कहानी में भी हम कैसे अच्छा कर सकते हैं वो भी हो सकता है, पर वो बड़ा सब्जेक्ट है. इतना सा मेरा एक टिप है सब दोस्तों के लिए यहाँ पर, जो है, परिवार में हार जाने में कोई बुराई नहीं होती. और ये मैं कह रहा हूँ, एक ऐसे लॉयर ने कहा है जिसने जिंदगी में सब लड़ाइयाँ जीत ली. एंड दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप स्टोरी टेलिंग पे काम करना चाहते हैं. दिस इज माई सीक्रेट वेपन, आई वुड से. मेरा सीक्रेट एक वो है जो मैं जनरली सबके साथ शेयर भी नहीं करता, बट क्योंकि आपने ये एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसका जवाब वहीं से मिलेगा. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. Thank you. एंड रियली मैं आपकी तहे दिल से तारीफ करता हूँ. और मैं बाकी लोगों से भी कहूँगा कि कुछ ऐसे सवाल अगर आपके दिल में तो जरूर से लेके आइए. जरूरी नहीं मेरे पास उसका जवाब होगा, पर मैं कोशिश करूँ. Thank you. Puneet, I'd like to ask, sometimes we are
dwelling in कौन our बोल रहा है own मुझे? stories. हाँ जी बोलिए. कभी हम अपनी स्टोरीज में हमें नहीं पता हम कैसी नेगेटिव स्टोरीज बना लेते हैं, उसमें हम डूब जाते हैं और कभी कभी हमें पता भी नहीं पड़ता कि हम उसमें डूबे हुए हैं और कितने. तो व्हाट इज द वे यू थिंक दैट इज दैट क्लिक, यू नो, to get out of that story which we made like a well in our lives and to recreate something that will forward us in life. So any thoughts on that? Yes, lot of thoughts on that. कौन बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आया. गीतांजलि बोल रही थी. That's Gitanjali only. She is not able. Her video is not streaming Okay. as an audio. So I'm so sorry, Puneet. I'm traveling today. Okay, not a problem. Not a problem. I just want to मैं किस जवाब किसको दूं बस इतना सा मैं जानना चाह रहा हूँ. क्योंकि Yeah. गीतांजलि देखिए, जैसा मैंने पिछली बार बोला था कि लाखों शब्द है उसमें से हमको एक शब्द चुनते हैं. उसी तरह हजारों कहानियां हैं जिनमें से हम एक कहानी चुनते हैं. और हम उसमें इतने डूबे हुए हैं, बिल्कुल सच है, हम उसमें इतने डूबे हुए हैं कि थिंग्स आर सो अनकॉन्शियस, हमको पता भी नहीं चलता. तो उसका एक मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ. पहली तो मैंने जैसे कहा कि ऑब्जर्व कीजिए कि हम लगातार अपने आप से क्या बोलते हैं. जब कोई बोलता है अरे दुनिया तो ऐसी ही है, आप क्या करते हैं? आप उसको बोलते हैं हाँ यार दुनिया ऐसी ही है, क्या करें? उसको आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? और जब आप 2 बार 3 बार 4 बार, यहाँ पे मैं आपको ये कहूंगा कि ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है. बिकॉज जब चीज इतनी अनकॉन्शियस है ना, तो हमको जानबूझ के इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मेरे अंदर कहानी चल क्या रही है. तो ऐसा समझिए कि जब आप बहुत गुस्से में हैं तो पूछिए मैं गुस्से में क्यों हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है. जब आप बहुत खुश हैं तो पूछिए कि मैं इतना खुश क्यों हूँ, क्या है जिसके कारण मुझे इतनी खुशी है. इन बिटवीन कभी अपने आप से पूछिए, अचानक अपने आप से पूछिए कि क्या चल रहा है भाई, मेरे अंदर क्या कहानी चल रही है. अगर कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को देख के आपको उससे बात करने की इच्छा नहीं होती, जबकि उसने ऐसा कोई बुरा नहीं किया आपके साथ, अपने आप से पूछिए ऐसा क्यों हो रहा है. देयर कुड बी मेनी रीजंस, पर और वो जवाब आपका खुद का होगा, वो जवाब आपका खुद का होगा. तो जब आप उसको नोट डाउन करने लग जाएंगे, उसको कहीं लिखने लग जाएंगे, ऑब्जर्व करने लग जाएंगे, you will learn so much more about yourself, number one, and then you will be aware about those stories. Does that give you some clarity? Yeah, it does. But the second part is that what does it take to change your story? वो कैसे करें, switch कैसे करें? मैं उस पर भी आता हूँ. सबसे पहली चीज ये है कि आपको ऑब्जर्व करना है कि स्टोरी चल रही है, ठीक है. दूसरी चीज जो मैंने बोला ना कि 2 कहानियां बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरह से मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि एक कहानी ये होती है कि मैं कौन हूँ. प्लीज अंडरस्टैंड, मैं कौन हूँ. बियॉन्ड आई एम एन आर्किटेक्ट और आई एम ए ट्रेनर और आई एम ए कोच, मैं हूँ कौन. और इसका स्पिरिचुअल जवाब की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो जवाब हमको ये पूछने से नहीं मिलेगा. पर अगर आपके दिमाग में एक सेल्फ, ये जितने भी देखिए 2 चीजें हो रही है जिंदगी में. एक तो सेल्फ इमेज होती है हमारी, और हम पूरे वक्त उस सेल्फ इमेज के हिसाब से ही काम करते हैं. तो अगर आपने सोच लिया, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ. जैसे हम एडवर्टाइजिंग में जब काम करते हैं तो एक साबुन है, मैं अब नाम नहीं लेता हूँ उन चीजों का, लेकिन एक साबुन है जो कहता है कि आपके बच्चों की स्किन के लिए, तंदुरुस्ती के लिए मैं बहुत अच्छा हूँ. और दूसरा एक साबुन है जो कहता है कि मैं आपको फिल्म अभिनेत्री की तरह खूबसूरत बना दूं. ठीक है. अब एक लेडी अपने परिवार में कौन सा साबुन लाती है? मैं आपको बोलूं, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटा सा डिसीजन है. पर जब हम रिसर्च करते हैं तो वो लेडी जो बच्चों की तंदुरुस्ती का साबुन लाती है, वो कहती है मैं ये साबुन लाती हूँ क्योंकि मैं अच्छी माँ हूँ. उसका ये सेल्फ इमेज कि मैं एक अच्छी माँ हूँ, उसकी जिंदगी के सब डिसीजन को तय करना.
उसी तरह वो लेडी जो कहती है उनको फिल्म अभिनेत्री की तरह खूबसूरत होना चाहती है, वो कहती है कि बिफोर बीइंग ए मदर आई एम ए वुमन, और इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ, कैसी लगती हूँ। दो ये सेल्फ इमेज है जो उनके जिंदगी के बाकी बहुत सारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना कि मैं हूँ कौन, मेरे अंदर क्या कहानी चल रही है। आपको जैसे पता चल, अच्छा दूसरी चीज हमको ये सोचना है कि अल्टरनेटिव कहानी क्या है, जो आपने कहा रिफ्रेश कैसे करें, अल्टरनेटिव कहानी क्या है, इसका दूसरा चॉइस क्या हो सकता है। मैं अच्छी माँ हूँ का दूसरा चॉइस ये भी हो सकता है कि मैं स्मार्ट माँ हूँ, एंड सडनली दैट विल create a different kind of story, different kind of choices. तो हमको अल्टरनेटिव स्टोरी क्या हो सकती है वो देखना है। हमको दूसरे लोग जो सक्सेसफुल हैं, जो आपको रोल मॉडल लगते हैं, आपको समझना है कि उनकी जिंदगी की कहानी क्या है, ये लोग हमेशा क्या बात करते हैं, ये हमेशा किस तरह से डिसीजन लेते हैं, तो क्या ये स्टोरी मेरे लिए ठीक रहेगी। आई थिंक दैट्स इट। सबसे पहला काम ये है कि जिस दिन आप अवेयर हो गए कि ये स्टोरी मेरे को लिमिट कर रही है, मुझे नेरो फोकस में डाल रही है, आप उसको चेंज करना शुरू कर दो। लेकिन अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम आता है। लोगों के दिमाग में अपनी एक सेल्फ इमेज होती है, उसके बाद जिंदगी में जो भी कुछ होता है ना, लोग अपनी सेल्फ इमेज के हिसाब से उसको जस्टिफाई करना शुरू करते हैं। तो जब आपकी कहानी जस्टिफिकेशन की कहानी बन जाती है तो आप वहीं अटक जाते हैं जिंदगी, फिर आपकी कहानी नहीं बदलती। दुनिया में जो भी कुछ होता है उसको आप जस्टिफाई कर दे रहे हैं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा था, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा था, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा था। You don't change your story, you don't change yourself. But then there are people who are ready to change their self, who are ready to improve themselves. तो जब जिंदगी में ऐसा कुछ होता है जो उनकी सेल्फ इमेज के साथ फिट नहीं होता, तो वो अपने आप से पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो आपको उदाहरण दूं कि एक बंदा है जो एग्जाम में फेल हो जाता है, सोचता है मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट, लेकिन वो फेल हो जाता है। अब वो कहेगा मैं फेल हो गया, मैं बीमार हो गया था, फेल हो गया क्योंकि वो तो आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गए, मैं फेल हो गया क्योंकि उस दिन मेरा दिन ठीक नहीं था, वट एवर बट ही वुड ट्राई टू जस्टिफाई। हर कहानी आपके सेल्फ इमेज के साथ फिट होना जरूरी है। जिस दिन वो फिट नहीं होती ना, उस दिन आप पागल होने लगते हैं। तो दो चीजें हैं, आप या तो उसको जस्टिफाई करो और अपनी सेल्फ इमेज को बनाए रखो, या आप देखोगे कि ऐसा क्यों हुआ और अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करोगे उस नए इंसिडेंट के साथ। तो दूसरी तरफ ये होगा कि आप बोलोगे यार मैं तो सोचता था मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, लेकिन यार मैं फेल हो गया, ऐसा क्यों। फिर वहां से उसकी कहानी शुरू, नई कहानी शुरू। वो कहेगा कि मुझे और अच्छा स्टूडेंट होने की जरूरत है, मुझे मेमोरी पावर बढ़ाने की जरूरत है, मुझे अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करने की जरूरत है, मुझे जिंदगी में थोड़ा डिसिप्लिन होने की जरूरत है। और फिर वो उन चीजों पे काम करना शुरू करेगा टिल ही रीच द पॉइंट वेयर ही कैन जस्टिफाई दैट मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, क्योंकि उसके मार्क्स बताएंगे कि तू अच्छा स्टूडेंट। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो जब हम पावर ऑफ स्टोरीज विद इन की बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका सेल्फ इमेज। आप अपने आप से क्या कहते हो मैं कौन हूँ। दूसरी चीज, आप क्या लगातार जस्टिफाई कर रहे हो और उस सेल्फ इमेज को पकड़ के रख रहे हो। और जिस दिन आपने सोचा नहीं यार मुझे तो डेवलप होना है, मुझे कुछ और बनना है, बेटर बनना है, एंड यू टेक दैट रिस्क टू एक्सेप्ट कि हाँ अभी जरूरत है मुझे कुछ और करने की, बदलने की, तो आपके सामने सॉल्यूशन आना शुरू होंगे। बताइए और कोई सवाल है।
सो थैंक यू सो मच, ये दोनों सवालों का इतना बढ़िया अपने विस्तार में जवाब दिया है. सो गाइस कम ऑन, आस्क योर क्वेश्चंस. इसकी वजह से आप ही नहीं बाकी के लोग भी बेनिफिट हो सकते हैं. एंड डोंट वरी, ये मेरा सवाल सिग्निफिकेंट है या नहीं, अच्छा लगेगा या नहीं, आगे ये भी स्टोरी है, राइट? सो गो अहेड. पवन अग्रवाल, देवेन, अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. यस. और मुझे लगता है पुनीत, आपने जो कहा ना वो एग्जैक्टली मतलब जैसे स्टूडेंट को निकाल के पेरेंट को डाल दो वहां पे, या एक बिजनेस ओनर को डाल दो. किसी को भी एग्जैक्टली ना, कि हम लोग दो आप चीजें करते हैं. डाल सकते हैं, या क्योंकि पूरा झगड़ा उसी का है कि हम अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं. वी आर अंडर द कंपल्शन टू अलाइन टू अवर ओन सेल्फ, और उसके लिए हम लोग इतना सब ड्रामा करते हैं, कुछ कुछ करते हैं. सो देवेन, या प्लीज गो Fine, अहेड. Devin, fine. Hope your struggles are less now. Yes, Puneet ji. These 2 weeks. Yes, yes, Okay, yes, great. yes. I'm changing a story from like victim hero to winning hero. Okay. अभी मैं अपने आप को गाइड कर रहा हूँ. नेगेटिव Okay. सेल्फ टॉक भी कम कर दी है, और वो आती रहती है. इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस. थोड़ी सी आवाज आपकी थोड़ी कम आ रही है मुझे. ये समझना. हाँ. अच्छा, ओके. Devin, you can try switching the video off स्टोरीज. and speaking. ओके. यस, यस. सर, ये स्टोरीज जो है या सेल्फ टॉक कह सकते हैं जिसे, और इसको हम कैसे लाइक गाइडेड करके और बेनिफिट ले सके इसका जीवन में, लाइक इन बिजनेस सफलता के लिए और रिलेशनशिप में. या बिल्कुल. तो मैंने आपसे कहा ना, सबसे पहले ऑब्जर्व करना है. अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि जैसे कि एक्सेप्ट कर लिया कि यार स्ट्रगल है जिंदगी में, वर्सेस देखिए एक जो अभी दर्शना ने कहा ना, लोग जिंदगी में इतना टाइम नाटक करने में लगाते हैं. नाटक करना पड़ता है, अपने आप को बचाना पड़ता है. मुझे प्रोडक्टिविटी की बात करें, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी पहुंचे हुए लोग है ना, मैं कई अचीवर्स के साथ बात करता हूँ, काउंसल करता हूँ, ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ. जो पहुंचे हुए लोग हैं ना, उनके पास नाटक के लिए टाइम नहीं होता है. वो सीधा सीधा काम करते हैं. एंड हमारा ज्यादातर वक्त इसमें जा रहा है दूसरे लोग क्या कहेंगे, दूसरे लोग क्या कहेंगे. एंड राइट. वंस वी एक्सेप्ट कि मैं ऐसा ही हूँ, मुझ में गड़बड़ है, फिर आप नाटक करना बंद कर देते हो. आपकी एनर्जी अपने आप को डेवलप करने में आती है, वो स्किल सीखने में जाती है. तो आई थिंक द मोमेंट यू एक्सेप्ट कि हाँ ऐसा है, प्रॉब्लम है, आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप. नंबर 2, हम एक्सेप्ट कॉन्शियस माइंड से कर लेते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली जो आदत हमको 20 साल में, 25 साल में, 40 साल में पड़ी, वो एक दिन में जाती नहीं. राइट इसलिए सर. मैं कह रहा हूँ वो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है. मैं आपको दूसरी टेक्निक देता हूँ. अनदर टेक्निक दैट आई यूज माई सेल्फ, क्योंकि ये जो हमारा जो अचेतन मन है ना, इतना पावरफुल है और इतना चुपके से काम करता है कि पता ही नहीं चलता. ठीक है. तो उसका तरीका यह है कि दिन में 5 अलार्म लगा लीजिए आप. 5 अलार्म लगा, अलग अलग टाइम. ओके. सुबह 9 बजे का लगा लीजिए, 12 बजे का लगा लीजिए, 2 बजे का लगा लीजिए, जो आपकी इच्छा हो. कुछ अलार्म लगा लीजिए, रेंडम अलार्म लगा लीजिए. और उसके बाद आप काम कर रहे हैं, आप जिंदगी जी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब वो अलार्म बजेगा ना, तब एक बार जरा पॉज कीजिए और अपने आप से पूछिए, अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है. एंड आई थिंक वो आपको जवाब देगा मेरे अंदर कहानी क्या चल रही है. जब आप लगातार ये करते रहोगे तो आपको एक मिलेगा, अरे हर बार मेरे दिमाग में यही चलता है कि मैं तो अच्छा नहीं हूँ, या हर बार दिमाग में चलता है कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ लेकिन रास्ते में रुकावट आ जाती है, या आप दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि अरे यार उसको इतनी सक्सेस कैसे मिल गई. आई एम टेलिंग यू, द मोमेंट आप दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हैं ना कि अरे वो इतना बड़ा कैसे हो गया, या आप अपने आप को बोल रहे हैं कि वो इतना बड़ा बन गया है क्योंकि उसके तो बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं, उसके बहुत कनेक्शंस हैं, आप एक्चुअली अपना वक्त जिंदगी का किसी और को दे रहे हैं. देन शिफ्ट तुरंत आपको समझ में आएगा. मैं अगर आप करके देखो तो समझ में आएगा. डूइंग विल मेक द डिफरेंस.
क्योंकि अदरवाइज आपको लगेगा ठीक है, हाँ अच्छी अच्छी कहानी है, 4 बार अलार्म लगाना चाहिए, लगा के देखो। एंड जब आप इसे 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन करोगे ना, आपको समझ में आएगी कि अरे ये क्या है, मैं ऐसा लगातार क्यों सोचता हूँ, क्यों सोचती हूँ, यू विल, एंड इज इट हेल्पिंग मी, इज इट हेल्पिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, इज इट हेल्पिंग। दूसरा सवाल, क्या मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, पूछो अपने आप से, एंड बी वेरी रूथलेस। जब हम पिछली बार ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे थे, ये जस्टिफिकेशन, तो अपने आप के क्रिटिक बनना पड़ेगा अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है। ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट तरीका है ना कि अरे आई एम परफेक्ट, लोग बोलते आई एम परफेक्ट, और पे ऐसा अफर्मेशन करते, आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच, नो वन इज परफेक्ट, एंड इफ यू आर परफेक्ट यू विल नेवर ग्रो। I would like to grow than being a perfect person. तो लगातार देखिए आप क्या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या एक्सक्यूज दे रहे लोगों को। मैं रियली कह रहा हूँ, ये बहुत मजेदार एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, ये बहुत गहरी बात है, इसको अगर आप पकड़ सके। कई बार हम काम शुरू करते हैं, उसके पहले ये सोच लेते हैं कि अगर ना हो पाया तो लोगों से क्या कहें। मुझे मालूम है आप हाथ खड़ा नहीं करोगे, लेकिन ये सच्चाई, अंदर वो एक्सक्यूज तो चालू रहता है, अगर नहीं हुआ तो लोगों से कह देंगे ऐसा हो। तो आप एक कहानी, फेल्योर की कहानी ऑलरेडी अंदर बना ही रहे हैं। फोकस फोकस आपको करना क्या है, एक्सक्यूज आप हटाना मुश्किल है, कितना हटा सकते हो ये देखिए। आई थिंक द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट, आपकी कहानी आगे बढ़ेगी, अच्छी कहानी आगे आएगी। तो लाइक आई सेड, जब लोग बोलते हैं दुनिया ऐसी है, या लोग बोलते हैं कि अरे अमीर लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम होती है, जो अमीर होते हैं ना उनकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, ये सुना आपने। और वो देखो, वो कितना बड़ा अमीर आदमी है, लेकिन उसका लड़का देखो कितने बीमारियों से गुजर रहा है, या कितना मोटा है, या कितना पतला है, थिंग्स लाइक दैट। आप वो कहानी अपने आप को कह रहे हैं, आप अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि मैं क्यों अमीर नहीं हूँ। सो जब आप दूसरों के बारे में बात करें, हमेशा ध्यान रखिए आप ये क्यों कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमको पता भी नहीं है कि हम ये कर रहे हैं, कि यू नो दैट अंडरलाइनिंग स्टोरी ही नहीं पता है। थैंक यू सो मच पुनीत। थैंक यू देवन फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। वेरी मच, थैंक यू। Shalaka also has a question. If Deven has completed, then Shalaka can ask her question. Yes, Shalaka. पुनीत जी, आपने लास्ट टाइम भी बोला था कि हम अक्सर अपने ही नशे में होते हैं, वी आर नॉट इन रियलाइजेशन की व्हाट इज हैपनिंग। तो वो आपने एक तो वो अलार्म के बारे में बताया, और क्या हो कि हमारा अलर्टनेस कायम रहे और हमको ये पता चले कि यू नो वी आर नॉट लिविंग ऑन समथिंग, सम स्टोरी, एंड वी आर नॉट लिविंग इन रियलिटी। मैंने कहा ना कि आप ऑब्जर्व कीजिए, दूसरी चीज सेल्फ इवोल्यूशन कीजिए। देखिए पूरी चीज कहाँ पे आती है आखिरी में, हाउ ऑनेस्ट यू कैन बी विद योरसेल्फ। एक आपकी सेल्फ इमेज है जो यहाँ पर है, और एक आपकी रियलिटी है जो यहाँ पर है, और अपने आप से पूछिए कि ये गैप है या नहीं है। अगर गैप है तो उसको हम पूरा कैसे कर सकते हैं। और आपको पता है, ये आपको पूछना भी नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, हर व्यक्ति को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सी कहानी गढ़ रहा हूँ, मैं दुनिया को क्या चेहरा बता रहा हूँ। हम दूसरों के साथ बेईमानी कर सकते हैं, खुद के साथ कर ही नहीं सकते। तो हमको पहली चीज, मैं आपको एक छोटी चीज बता दूं, अनदर बुक जो आपको पढ़ना चाहिए इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ मोहम्मद अली। पढ़े, आई एम टेलिंग यू दैट विल हेल्प यू। ही वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर मोर देन एनीथिंग एल्स। बॉक्सर तो थे, ग्रेट स्टोरी टेलर थे। एंड ही सेड कि आई न्यू आई वाज द ग्रेटेस्ट, आई न्यू आई एम द ग्रेटेस्ट इवन बिफोर आई वाज। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि
मैंने जितने भी सुपर अचीवर्स से बात की है, सब लोग ये समझते हैं कि वो तो दुनिया से अलग है, उनकी एक अलग कहानी होती है। वो सोच कहते हैं ये सब ऑर्डिनरी लोग हैं, मैं अलग हूँ, मैं एवरेज नहीं हूँ, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ। दे क्रिएट दिस स्टोरी इन देयर हेड, और मैं पता नहीं कितने लोगों को ड्रिल कर चुका हूँ। दे ऑल हैव द सेम स्टोरी। नंबर 2, वो क्या करते हैं, ये स्टोरी क्रिएट करते हैं, और उनको भी पता है कि मैं ग्रेट नहीं हूँ। देन दे वर्क टायरलेसली टू मेक दैट स्टोरी हैपन, तो अगर आपके दिमाग में स्टोरी है कि मैं तो बहुत ग्रेट हूँ, तो उस स्टोरी को सच कैसे बनाया जाए? दे आर अवेयर कि मैं नहीं हूँ, ऐसा नहीं हवा में नहीं जी रहे हैं। इन द सेम वे हमको भी करना है, क्रिएट ए स्टोरी फॉर योरसेल्फ, create a self image which is 10x beyond you what you are today, and then you won't justify yourself today, then you will say यार वहां जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। दैट्स वाई आप देखते हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, दैट्स वाई वो दूसरे मेंटोर्स के पास जाते हैं और सीखते हैं। उनको कोई लज्जा नहीं है, लाज शर्म नहीं है कि मैं दूसरों के पास जाके क्यों सीख रहा हूँ। रादर आप देखोगे कि ये जो सुपर अचीवर्स है ना, उनके ज्यादा मेंटोर्स होते हैं, और कई बार वो दुनिया के सामने नहीं जाते, पर चुपके से आते हैं हमारे पास, 1-to-1 बात करते हैं। बोला आई डोंट नो वेदर आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, आई एम वर्किंग विद फ्यू पीपल जो कहते हैं कि सर हमको सीईओ बनना है कंपनी, और मैं जहाँ आज खड़ा हूँ मैं सीईओ नहीं बन सकता, बट आई वांट टू वर्क ऑन इट, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, दे आर गोइंग प्रोफेशनली अबाउट इट। तो दो चीजें, दे अंडरस्टैंड कि आज की तारीख में वो जो है उसके हिसाब से नहीं कर पाएंगे, उनके डाउट्स हैं उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, but then they start working on those doubts, start working on the skills, the attitude, so that they can reach there, उनकी कहानी सच बन सकती। एंड आई थिंक आप सब लोग जो यहाँ बैठे हो, प्रोडक्टिविटी पे काम करो, इन सम वे आई सी दो सीड्स इन यू। आप करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप टाइम दे रहे हो, आप सुन रहे हो। तो आई थिंक मेरा टाइम अभी हो गया है या अभी और बाकी है? No, we are going on till 8:55. ओके, तो एक सवाल मैं और ले So सकता हूँ? I have a question. हाँ जी। Hi Puneet, I'm sorry, मैं ना I got cut off on bad network में। तो मेरा जो एक क्वेश्चन फॉलो अप क्वेश्चन था ना पहले वाले के साथ, वो ये था कि बहुत क्रिटिकल है ये जो ना एक शब्द में अपनी स्टोरी को बयां कर पाना और उसको चेक करते रहना रियलिटी से और उसको रिफाइन करते रहना, ये तो बहुत बड़ा आर्ट है। पर इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल यू नो आई एम इन द वर्क ऑफ figuring out the needs of everyone else because I have these beautiful products. What is that need that the product is filling for someone? What is the service that that product brings value to someone's life? These beautiful crafted luxury nice emotionally durable products, what is that it will fit in whose lifestyle? So I'm a bit, I keep wondering and I don't have answers. How do I find out? मैं इसका आंसर भी देता हूँ, एंड आई थिंक दैट विल हेल्प अदर पीपल आल्सो। कि दो चीजें कि स्टार्ट थिंकिंग अबाउट स्टोरीज कि दूसरे लोग जो है ना उनकी सेल्फ इमेज क्या है। वो आप अपनी क्लाइंट लिस्ट को एक बार देखोगी तो आपको समझ में आएगा किस तरह के लोग बार बार हमारे पास आते हैं। जब आप उनसे बात करोगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड उनकी सेल्फ इमेज क्या है, व्हाट नीड योर प्रोडक्ट्स आर फुलफिलिंग इन देयर लाइव्स। तो एक बार ये जब उनका स्टोरी में आप देखोगी ना, अपने जो करंट क्लाइंट्स हैं, तो आपको पता चलेगा कि मुझे आगे किसके साथ बात करनी है, तो मेरा ये प्रोडक्ट है किसकी कहानी में फिट होगा, बिकॉज इट विल फिट, बिकॉज इट विल हेल्प देम लिव ए बेटर लाइफ। और उनके एक जो सेल्फ इमेज है कि मैं खूबसूरती को समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड क्राफ्टिंग। तो जरा सा आप ये पता करने की कोशिश कीजिए कि वो लोग आपका, एक चीज तो ये होती है कि उन्होंने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया, लेकिन थोड़ा सा अंदर जाके आप
जब आप कोशिश करेंगे क्यों, व्हाट नीड इट इज फुलफिलिंग, एंड स्टार्ट राइट, तो कम से कम आप 10 क्लाइंट लोगों से बात कीजिए, ऐसे लोगों से बात कीजिए जो बार बार आपके पास आते हैं, और देखिए कि वो नीड क्या है। वो नीड पर्सनल हो सकती है, वो नीड सोशल हो सकती है। आई थिंक दैट डॉक्यूमेंटेशन, एंड वी ऑलवेज डू दैट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बताता हूँ, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई बार हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है या हम बहुत अच्छे होते हैं और हम लोगों को वो बोलने में झिझकते हैं। हमको लगता है कि लोग समझेंगे हम अपने आप को सेल कर रहे हैं। पर अगर आपकी स्टोरी ये है कि मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है जिसकी दुनिया को सख्त जरूरत है, और अगर मैं लोगों को नहीं बताऊंगा या बताऊंगी तो ये तो जाती हो जाएगी। आज फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास नॉलेज है और मैं आपको नहीं बता रहा हूँ तो ये ठीक नहीं है। मतलब इफ आई नो समथिंग एंड इट कैन हेल्प यू, मैं आगे बढ़ के आपको बताऊँ। तो उसी तरीके से अगर आपके मन में है कि मैं जो जानता हूँ, अगर आप कोच हैं, ट्रेनर हैं, और आपको लगता है कि मैं जो जानता हूँ इतना इंपॉर्टेंट है कि लोगों की जिंदगी बदल सकता है, तो आगे जाके बात कीजिए। तो आपकी स्टोरी चेंज होना चाहिए। आपकी स्टोरी अरे यार मैं लोगों से बिजनेस मांग रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ओके, वर्सेस आई एम हियर टू डू गुड। जो आएगा, जो इस बात को समझेगा, मैं उसका भला कर दूंगा। बस आई विल टेक सम मनी फॉर इट, बट द होल मैसेज इज सो इम्पोर्टेंट, प्रोडक्ट इज सो। तो वो कहानी अगर आपके अंदर चलेगी, फिर नंबर 2, रियलिटी और उस इमेज में गैप हो सकता है। आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है तो आप कोशिश करोगे कि उसको थोड़ा अच्छा किया जाए, सो दैट योर स्टोरी बिकम ऑथेंटिक। यस, थैंक यू सो मच। बट इसमें आपने जो क्रक्स बोला कि वो जो नीड पता करनी है, so for example, if I know a lot of people get from me, and certain kind of people get certain products and certain kind get some other products. It's interesting to know, and if you make a correlation, and let's say if I call them up or if I speak to them thanking them, but what are those questions that can help me get the need out? मतलब किस तरह के questions होंगे वो? देखिए ये क्वेश्चन होंगे ही नहीं। क्या होता है कि हम जब स्ट्राइक ए कन्वर्सेशन विद देम, स्ट्राइक ए कन्वर्सेशन विद देम, और आपको सुनना है कि हाउ इट हेल्प्स देम। यू नो इट्स एन आर्ट, इट्स एन आर्ट। लिसनिंग इज अनदर आर्ट, गेटिंग थिंग्स आउट ऑफ पीपल इज अनदर आर्ट। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज, कुछ लोग जो आपके बहुत करीबी हैं, कुछ लोग जो आपके बहुत करीबी हैं, आपके क्लाइंट्स, उनसे आप सीधे सीधे पूछिए एंड दे विल टेल यू। तो जनरली आपको ये पूछना है, जो पता लगाना है कि इमोशनली इस चीज की उनकी जिंदगी में क्या वैल्यू है, इमोशनली हाउ इट हेल्प्स देम। दूसरी चीज, अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं चल रही है ना, तो आप थोड़ा अमेजोन पे जाइए, वहां पे देखिए कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में क्या लिखा जा रहा है, जो रिव्यूज लोग देते हैं उसको थोड़ा सा पढ़िए। आपको पता चलेगा कि लोग क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है। बट इट्स अनदर सब्जेक्ट टू फाइंड आउट दोज नीड्स, दोज इनसाइट्स किसी और दिन। अभी मैं केवल आपको क्लू दे सकता हूँ कि डोंट अज्यूम, गो टॉक टू देम एंड फाइंड आउट। ब्यूटीफुल, बट ये बहुत बड़ा एक साइंस, really intriguing, or we will definitely invite you for this next chapter in it. And yeah, but thank you so much, Puneet. Thank you Gita. Yeah, thank you Shigitanjali for asking that question. Yes, Puneet. Yeah. तो मुझे जो महत्वपूर्ण बातें बोलनी थी मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन में बता दी है, वो दोनों तीनों। मैं ये 2 किताबों के बारे में बताना चाहता था। गैरी स्पेंस, हु इज अ लॉयर, जिन्होंने कभी कोई क्रिमिनल केस नहीं हारा, नंबर 1, दैट बुक यू कैन फाइंड आउट, इट विल बी अवेलेबल। नंबर 2, ग्रेटेस्ट पढ़िए, ग्रेटेस्ट बाय मोहम्मद अली। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज he was a black person and he was extraordinary, but faced a lot of criticism, and how he went ahead of it is important.
also important to understand storytelling part of it, because he was a great storyteller. Okay, तो दो किताबें मैं जरूर बताना चाहता हूँ, और आई एम सेइंग रीड इट रिलीजियसली, यू विल लर्न अ लॉट. इसके अलावा मैंने कहा ऑब्जर्व कीजिए स्टोरीज को, लिखिए, इंपॉर्टेंट है. अलार्म लगा लीजिए 3 4 5, सो दैट यू आर अवेयर क्या हो रहा है. अपने आप से ये सवाल पूछिए कि मैं एक्सक्यूज तो नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्टिफाई तो नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे लोगों की क्रिटिसिज्म में तो टाइम नहीं लगा रहा. ये इंपॉर्टेंट है. एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज कि क्रिएट अ स्टोरी फॉर योरसेल्फ जो बहुत बड़ी है आपके लिए, एंड ट्राई टू बिकम दैट. डोंट जस्टिफाई योरसेल्फ टुडे. आज की सेल्फ इमेज हमारी बहुत लिमिटेड है. हमको कुछ बहुत बड़ा काम करना है तो हमको कुछ और बड़ा बनना पड़ेगा अपने आप. तो वो जो बड़ा काम हम करना चाहते हैं उसके लिए हमको कितना बड़ा बनना है, क्या हमको आना चाहिए, क्या स्किल आना चाहिए, वो जरा ध्यान दीजिए. आई थिंक दैट्स ऑल इज इम्पोर्टेंट. एंड देन उत्तरा जी ने जो सवाल शुरू में पूछा था, मैं फिर से एक बार बोलूंगा कि कहानी कुछ छोटी मत रखिए, बड़ी कहानी के पार्ट के रूप में देखिए. एंड व्हेन इट कम्स टू फैमिली, लूज विन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता. So that's all from me today. I would like to know आप लोगों को आज इसमें से क्या सीखने को मिला, what takeaways you are taking. आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं. और over to you, Darshika. Yeah. Thank you, Puneet. Thank you so much. And yeah, guys, let's do that. Let us revise कि पुनीत से आपने एक चीज क्या ली है. You know, for me, it was a big one that when it comes to family, okay, you can choose to lose because हारा हुआ आदमी आपसे प्यार नहीं करता. तो ये बहुत बड़ा takeaway था. And thank you for that activity. We're really pausing and observing. Sometimes Taran, I get very, very, very angry. I'm very angry. I have this practice of just smiling to myself. So like, what story are you telling? What are you creating? Where is it coming from? Or I actually smile and I like, dekha fir se wahi kar rahi hai na. Types, I do that with myself. And, I really appreciate ये जो आपने business tips भी हमको दिए. मैं बीच में आना चाहता हूँ दर्शना. Yes. Especially listen, क्या चीजें जो आप बार बार कर रहे हो. मेरा कहना स्माइल के आगे जाना पड़ेगा कि अगर ये बार बार कर रहे हैं तो अब इसको रोकना है हमको और कुछ और करना है. Absolutely. कुछ और क्या हो सकता है. क्या प्लीज. बट वेरी नाइस अप्रोच, आई अप्रिशिएट इट. वो एक एंकर होता है ना, वो एंकर होता है कि सडनली देख, मतलब दिस इज कमिंग फ्रॉम यू ओनली. Look again, like people when they overrule, then it's like I'm not important, I don't matter. ये story होती है ना मेरी, वो मुझे समझ में आता है कि अच्छा ये यहाँ पे केस कोई और है. It's all that you are thinking that you don't matter. So when a request is not accepted, immediately it comes, the story is that Darshana doesn't matter. So I'm sure that all these things come from self-esteem. और बहुत बहुत जरूरी है, जैसे आपने मुझे कहा कि ऑनेस्टली पुनीत एंड ऑल ऑफ यू माय प्लान टू विन कम्युनिटी, हम लोग यहाँ पे आपके साथ काम करते हैं सेल्फ एस्टीम पे ही, वो पता ही नहीं है. लाइक आई वाज रीडिंग दिस बुक बाय ऑल ऑफ अस नो बाय रॉबर्ट कियोसाकी. उन्होंने कहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक गाइस, द फेमस रॉबर्ट कियोसाकी बुक, Rich Dad Poor Dad. Yes. उसमें उन्होंने कहा है कि ना बिजनेस लोगों का कुछ और होता है. Like they show some other business, but the actual business is something else. So like, we show that we are into productivity, but actually we are into, improving and raising your self-esteem. Because self-esteem अगर आपका high होता है तो आप ऐसे stories बताते हो, या आप ऐसे stories बताते हो जो आप true करने के का जिगर रखते हो. And believe me, Puneet, I have been thinking and really meditating on the things like how can I get extraordinariness out of myself and everybody else. So I am a teacher by profession. I am really committed that we have a community who is empowered. तो इसके लिए extraordinariness बहुत जरूरी है. और ये चीज भी मैं जानती हूँ कि मैं लेजी हूँ. ये मैं एक्नॉलेज ही नहीं कर रही थी. और लेजी होना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है. तभी तो आप शॉर्टकट्स निकालोगे, हैक्स निकालोगे, and you want to achieve so much by a little effort.
So really, really, really thank you, Puneet. Like so many things have got unveiled and मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लान टू विन में जो लोग आते हैं उनको सब कुछ पता है, सबको सब कुछ पता है, but it's the timely reminders that we get from such wonderful speakers. And Puneet, you have really got us alive with this storytelling dimension. Once again, thank you very much. Thank you so much. And I would say sometimes I become very strong in my message. But same thing, because I think it is important and I must spell it out, even if it hurts sometimes. So might be I have done the same thing. I challenge, I provoke, but my intention is so that all of us get to the next level. And so all of you who would like to connect with me on LinkedIn and keep sending your messages. And और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी. If you want, इस फ्रेम के बाहर भी हम बात करते रहेंगे. Thank you so much. Absolutely. You're going to join. We are going to share your credentials on our Plan to Win Heart to Heart group. अगर आपने join नहीं किया है, Nalini, it's so nice to see you here. So please join our community. And every Saturday we meet at 8 a.m. for the expert speak. And there are many more programs happening. The information will be on the Heart to Heart group. Thank you once again. Have a great, great weekend and keep telling stories which are going to raise your level every day. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you.